Okay, so this time we'll be dealing with this third passage, and this was basically between what Chinese workers or like something like China and Pakistan, something like that, right? Okay, so let's just see. So therefore, this is like geopolitics. Now, usually geopolitics वाले जितने भी होते हैं, they're like usually easy, but obviously they can sometimes get difficult because well, they are geopolitics and then they deal with strategies and stuff. So it can get a bit tricky. So we'll see how that goes. But yeah, I mean the whole text usually is like very easy to understand. So like we'll go word by word. Okay, first we'll read it, then obviously we'll approach the questions. So this thing might take like a good 30 minutes or something like that. But yeah, so all right, let's just start. Over just 1 week, Pakistan has witnessed three major attacks on strategic sites on Tuesday or wait a minute. Oh, sorry, नहीं fine. Sorry. मैं बहुत informally बना रहा then it's like what इतना बज गया तो फिर हम थोड़ा सा sleepy but okay never mind. I'll try कि ज़्यादा नाटक ना हो. Okay. Over just 1 week, Pakistan has witnessed three major attacks on strategic sites. और Tuesday तो देखो थोड़ा सा ना कि जैसे पहली लाइन से you get the context कि अच्छा पाकिस्तान में मेजर अटैक्स हुए हैं थ्री मेजर अटैक्स ओके ऑन और कहाँ पे हुए स्ट्रैटेजिक साइट्स में तो थोड़े थोड़े जो पढ़ सकते हैं जैसे स्ट्रैटेजिक वर्ड है तो दिस मीन्स समथिंग स्ट्रैटेजिक साइट्स अभी इस पे कुछ तो ऑथर बोलना चाहिए इसको राइट सो जस्ट कीप दीज वर्ड्स इन माइंड देन ऑन ट्यूसडे सुसाइड नंबर फिर ही बता रहा है क्या हुआ था carrying Chinese workers from a hydro project in Dasu. Five Chinese nationals and Pakistanis were killed. On Monday night, Baloch Liberation Army fighters attacked a naval to release one soldier. And days after that, BLA attacked Gwadar where the port is a main. अब देखो अब चाइना नाउ यू गेट द कॉन्टेक्स्ट चाइना कुछ तो मेजर रोल है इसमें इस पैक में ना अब अटैक ग्वादर where the port is a major part of CPEC. अब बता रहे हो CPEC is the linchpin of being Beijing's ambitious Beijing मतलब you get it China Beijing's ambitious Belt and Road Initiative. तो यू अंडरस्टैंड कि सीपेक जो है वो इट इज अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड ये इसकी इवन इफ दिस जैसे एक ये वर्ड है इफ यू आर थिंकिंग कि इट्स यू लाइक गेटिंग कंफ्यूज तो स्टिल डीआर ये लाइक नॉर्मल जीके है सो यू नो इट कि सीपेक इज पार्ट ऑफ बी आर आई बी एंड आर आई बोलते हैं इट वुड बी अ मिस्टेक फॉर रावलपिंडी अब रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद नाउ देखो इसका इसका ये रीजन क्या है ना रावलपिंडी इज एक्चुअली मिलिट्री का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद इज पॉलिटिकल हेडक्वार्टर तो इसमें ये बोला है कि इट विल पास मिस्टेक फॉर आर्मी एंड जो वो है टू व्यू गवर्नमेंट है टू व्यू द टैक्स मेरली सिक्योरिटी अब देखो यहाँ पे ऑथर का सजेशन आ गया कि अगर पाकिस्तान इसको सिर्फ मेरली सिक्योरिटी इशू मानेगा तो फिर ये मिस्टेक है ठीक है दिस इज लाइक द फर्स्ट मेजर पॉइंट का लाइक फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑथर नाउ अभी जो ये पॉइंट है ना ऑथर इज गोना बिल्ड अपॉन दिस थिंग बोल कि प्लीज भैया इसको सिर्फ सिक्योरिटी इशू मत मानो क्योंकि आपकी गलती होगी दे पॉइंट टू द अब देखो वो क्या है दे पॉइंट टू द ब्रॉडर वल्नरेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमी ठीक है तो बोलने की सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं है इट पॉइंट्स टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना कि मतलब ऐसे कोलैबोरेट कर करके जो कर रहे हैं तो वो वल्नरेबल है एंड वो दिखा रहा है जो टैक्स हो रहा है इट शोज दैट ये बात है ठीक है अब देखो अब सिंपल चाइना has reacted strongly while reiterating its ties with Pakistan मतलब चाइना स्ट्रांगली रिएक्ट किया है बट वो ऐसा है कि फिर भी लाइक वो बोल रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के तो हम साथ में हैं फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन exhorted Islamabad to hunt down the perpetrators and bring them to justice and said that no attempt to sabotage will ever succeed. The rhetoric around the ironclad the strategic अब the rhetoric around the ironclad friendship, notwithstanding the strategic and political costs of the CPEC are growing. मतलब ये जो rhetoric है ना rhetoric है कि I mean rhetoric you guys get it right जो ironclad friendship is basically between China and Pakistan
उसको छोड़ के लाइक नॉट विस्टैंडिंग दैट इसकी जो सीपैक की जो कॉस्ट है वो ग्रो हो रही है, मतलब ये ऑथर बोल रहा है। ठीक है, ये ऑथर बोल रहा है। अभी अभी देखो धीरे धीरे, क्योंकि बात ये होती है पहले पर्सन में यू गेट द कॉन्टेक्स्ट, ओके देन द ऑथर मूव्स थ्रू हिज होल पॉइंट। तो आपको जो जहाँ पे ऑथर का पॉइंट है ना वो आपको आपके लिए बहुत मैटर करता है। अभी ये सब जो चीजें हैं ये सब ये फैक्ट्स है, यहाँ तक तो इस तक तो फैक्ट है। तो ये ठीक है, आई मीन यू गेट द कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा आपको समझाने लगता है कि दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। basically facts help in that, sometimes just sometimes there might be questions from facts but usually they are not। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। द लेटेस्ट राउंड ऑफ अटैक इज नॉट द फर्स्ट। अच्छा ठीक है, इन 2021 इतने इतने लोग यहाँ पे मारे। ठीक है, और इट्स लाइक हैव, अब देखो देखो यहाँ पर आ गए, ये ऑथर का है। यहाँ तक यू गेट इट कि ये वो है। ठीक है, ये जो बात है ये फैक्ट है, राइट। ये लाइक नॉट द फर्स्ट, फैक्ट भी है, और ये कहीं ना कहीं ऑथर के आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करेगा, मतलब ये हेल्प कर रहा है। यू माइट, मतलब ठीक है, इसको तो एंकर नहीं बोलोगे बिकॉज एंकर समथिंग जहाँ से ऑथर डायरेक्टली अपनी अथॉरिटी डिराइव करेगा। एंकर लाइक मैं बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे भी रिपोर्ट आ जाती है या फिर किसी और का कुछ आ जाता, अगर वो किसी को कोट करता जिसपे वो अग्री करता तो दैट इज एंकर, ये फैक्ट है। पर इस फैक्ट पे वो बिल्ड कर रहा है, क्या बिल्ड कर रहा है। और सो लाइक पीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड आईएसआईएस खुरासान हैव लॉन्ग हार्बर्ड एंटी चाइना, देखो दे हैव लॉन्ग हार्बर्ड, है ना, लॉन्ग मतलब काफी अभी का नहीं है, रिसेंट का नहीं है, बहुत पहले का है। तो यहाँ पे एक लेसन आता है, अगर कोई ऐसे ऑप्शन बोले कि रिसेंटली हो रहा है, लाइक रॉन्ग, बिकॉज ये लॉन्ग हार्बर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है यहाँ पे। एंटी चाइना सेंटिमेंट्स एंड बलोच इंसर्जेंट्स लाइक द बीएलए सी द सीपेक एज detriment, oh fuck, sorry, yeah, and Baloch, अरे यार, and Baloch insurgents see the, अरे क्या है, the BLA see the CPEC as detrimental to their, fuck this shit, what the fuck, okay, मतलब you guys get it right, तो ये मतलब मैसेज लगा ब्रॉडर एस्पिरेशंस के वो खिलाफ है, तो मतलब व्हाट यू गेट इज कि वो सीपेक और ये तो एकदम भी अम, उनके अंदर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं। ठीक है, इसीलिए वो ऐसे ऐसे अटैक कर रहे हैं, जैसे ये अटैक है ना, ये वो इसीलिए कर रहे हैं। तभी देखो इसने बोला ना कि इट वुड बी मिस्टेक टू मेरली एज अ सिक्योरिटी इशू, क्योंकि सिक्योरिटी इशू नहीं है वो। अब इसी से यू कैन गेस कि यहाँ पे उसने कुछ बोलेगा कि आप एड्रेस करो ये सब बातों को। ठीक है, यू कैन जस्ट एंटिसिपेट दैट, यू कैन एंटिसिपेट कि ऑथर आगे यही बोलने वाला है। लेट्स जस्ट सी क्या बोलता है। पाकिस्तान सिक्योरिटी इशूज ranging from its conflict with Iran, Afghanistan and Western to बड़ोच डिमांड, अब देखो यहाँ पे ये बता रही ऑथर बोल रहा है डिमांड मोर देन जस्ट अ मिलिट्री रिस्पॉन्स। अभी क्या डिमांड करता है वो विल सी। द फैक्ट इज दैट कंट्रीज लीडरशिप हैज प्लेस्ड टू मेनी एग्स इन द सीपेक बास्केट, कि मतलब वो सीपेक बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, हाँ, टू मेनी एग्स इन द सीपेक बास्केट। द रिलायंस ऑफ चाइना coupled with a prolonged economic crisis had has made Pakistan more vulnerable on multiple fronts। तो एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि एक ये मेजर आइडिया है, ऑथर दो आइडिया को कंबाइन कर रहा है। किसको कंबाइन कर रहा है? इकोनॉमिक क्राइसिस को और रिलायंस ऑफ चाइना को। तो जब ऐसा कभी तुम्हें दिखे जस्ट रिमेंबर, अब ये कैसे रिमेंबर करोगे? दिस विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस, ओके। द मच द लाइक द मोर यू रीड द मोर यू विल नॉट डू स्टफ, उससे यू विल गेट दिस थिंग। तो द रिलायंस ऑफ चाइना है क्योंकि एक पॉइंट है, एंड देन दूसरा ये है। तो उससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान इज लाइक वल्नरेबल ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है। जस्ट टू एड्रेस दिस वर्ल्ड, अब देखो यहाँ पे सजेशन आ गया, ये और इम्पोर्टेंट हो गया। टू एड्रेस द कंट्री नीड अ सिस्टमिक ओवरहॉल। ठीक है, ये ऑथर का काफी बड़ा आइडिया आ गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। पर शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है, किया यहाँ से भी आ सकता है, क्योंकि ऑथर का एक सजेशन हो गया। ठीक है, अभी जिसने बोला था ना कि मोर देन जस्ट अ मिलिट्री रिस्पॉन्स, तो वो बोल रहा है कि इसको एड्रेस करने के लिए सिस्टम में कवर। अब देखो अब यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब ये पूरा जो पैसेज है ये इंपॉर्टेंट है ना। ये पूरा ऑथर का सजेशन है। फर्स्ट स्टेप शुड बी टू ओपन अप इट एंड डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी। अभी इसका assumption क्या होगा? इसका assumption कुछ तो ऐसा होगा कि अगर आप एक जगह पर जैसे है ना कि 2 मिलियन
इन द सीपेक बास्केट। अगर आप ये जब भी रिलाई करो तो फिर यू गेट वल्नरेबल, क्योंकि देखो जस्ट रिमेंबर ऑथर ने यहाँ से शुरू किया टू एड्रेस दिस वल्नरेबिलिटी, तो वो जो भी बोलेगा वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ही बोलेगा कि वल्नरेबिलिटी को एड्रेस कैसे करें। और वल्नरेबिलिटी कहाँ है, वल्नरेबल पाकिस्तान ऐसे हो रहा है, रिलायंस ऑफ चाइना नंबर वन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ये दो से वो वल्नरेबल है। और मल्टीपल फ्रंट्स, फ्रंट्स वाला हमें पता नहीं ज़्यादा बट ठीक है, इसलिए एक वल्नरेबल। अभी इसी वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए यू नीड टू फर्स्टली डाइवर्सिफाई योर इकोनॉमी। अब देखो बता रहा है ओपनिंग अप ट्री स्टाइल्स विद इंडिया। अब देखो एक ही सजेशन है, इंडिया से कर लो, कुड सेंड अ मच नीडेड सिग्नल, फाइन। It would indicate a much needed level of maturity in the part of Islamabad and Rawalpindi. It was disputed to the global community that Pakistan's leadership has the capacity to keep parochial political rhetoric in its place for the sake of the economy. ठीक है, एक ही सजेशन है। अब मोर मतलब फर्स्ट स्टेप ही है, ठीक है, अभी मतलब ठीक है फर्स्ट स्टेप है। अब या तो दो हो सकता है कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको पूरा क्लिप कर दिया होगा पैसेज को, उसने आगे बताया होगा, या फिर उसने सिर्फ ऐसे ही बस एक लिखने कर दिया कि फर्स्ट स्टेप, आप पहला कदम आपके लिए ये हो सकता है ना। टू अ मोर ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी इज एन एंड इन itself, but it will also make Pakistan safer. As things stand, CPEC sites and personnel are prime targets. As a disruption, the project has a potential to trigger a larger instability. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑथर का बस एक मेजर सजेशन यही है कि पहले तो देखो दो चीज़ें बोल रहा है, किसको सिक्योरिटी इशू मत मानो, ठीक है। दूसरा वो ऑब्जर्व कर रहा है कि रिलायंस ऑफ चाइना और इकोनॉमिक क्राइसिस से वल्नरेबल हो रहा है, तो उस पर बोल रहा है कि डाइवर्सिफाई करो इकोनॉमी। कैसे करो, ओपनिंग अप ट्रेड राइस विद इंडिया, ठीक है, उससे क्या क्या होगा, ये सब होगा, डिस्प्ले टू द ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है, फाइन। और यहाँ पे बोल रहा है इज एन इट विल, बट इट विल ऑल्सो मेक पाकिस्तान सेफर। अभी इससे क्या होगा कि ब्रॉड बेस इकोनॉमी सेफर, उससे पाकिस्तान सेफ भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज सीपेक जो कि चाइना का है, वो प्राइम टारगेट्स हैं। एज अ डिस्ट्रप्शन टू द प्रोजेक्ट हैज द पोटेंशियल टू ट्रिगर अ लार्जर इंस्टेबिलिटी। अभी इंस्टेबिलिटी किस कॉन्टेक्स्ट में है, वेल दैट्स ऑन यू, बट हम लोग को इतना पता है, देखो पूरा लिंक होता है, ठीक है। इसने यहाँ पे भी आके लिंक किया कि उससे आपके जो जो ये सब ये हो रहा है वो भी नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोग के अंदर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स है, तो व्हेन यू ओपन अप, तो उससे ये भी जूम कर रहा है कि पाकिस्तान सेफ हो जाएगा, क्योंकि उनके जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं वो लेट्स जस्ट सप्रेस हो सकते हैं, या फिर वो हो सकता है कि वो भी डाइवर्सिफाई हो जाए ना। आई मीन सिर्फ सिर्फ लाइक एग्स आर नॉट जस्ट इन द सीपेक बास्केट, वो बाकी जगह भी हैं, उससे लाइक काफी सारे फायदा हो रहा है। तो इट इज लाइक बेसिकली दिस, ठीक है। लेट्स जस्ट सी अब क्या है पहला क्वेश्चन, समरी ढूंढनी है, ठीक है, मतलब मेन आइडिया टाइप का। ओके, सिग्निफिकेंट एक्सकवेटेड इंटर, अब देखो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे लिए रेड वर्ड है। मैं रुको रुको सॉरी, मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है, या तो थोड़ा इससे कर लेते हैं, और जैसे रेड, रेड क्या, देखो इंटरनेशनल रिलेशनशिप इज लाइक अ रेड थिंग, क्योंकि ये पता नहीं हैव रिवील्ड द वर्ल्ड। हाँ, फाइन, फाइन भाई फाइन, देखते हैं और देखते हैं, बस मेक इट शिफ्ट टू एलिवेट ड्यू टू ओवर, हाँ बेटर है, राइट बेटर है। तो अब एलिविएट, देखो एलिविएट का मतलब एलिवेट नहीं होता है, इफ यू गाइस डोंट नो, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करता है, मतलब आई आई गेस तुम लोग को पता होगा, बट जस्ट स्टिल एलिवेट मतलब कम करना, ठीक है। अह, ये बहुत सही लग रहा है ना, ये ऑप्शन जो आपको लग रहा है बहुत सही लग रहा है, तो इफ आई हैड टू चूज बिटवीन बी और सी, मैं तो सी को मार करता, ठीक है। अभी देख लेते हैं वो क्या है, व्हाट डू वी हैव, yeah, so D क्या है, recent strategy attacks in Pakistan highlight the CPEC as being biggest source of worry for the Pakistan. Well, this is not the summary. एक तो देखो ये ऑप्शन एकदम कूड़ा ही है, ये तो ऑथर ने बोला नहीं, बाकी ये सब चीज़ें ठीक है, ये पैसेज सबसे ट्रू हो सकती हैं, बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछे, हम लोग क्वेश्चन पूछे समरी ऑफ द पैसेज, ठीक है। ऑलवेज टेक व्हाट द क्वेश्चन आस्क यू, क्वेश्चन में पूछे समरी, समरी में दिखाया ना यहाँ पे क्या क्या है, ये सब ये ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी, उससे ये वल्नरेबल भी है, स्टफ स्टफ,
तो ये है, तो इसलिए आंसर तो मेरा सी होगा, राइट। नाउ यू गेट इट। तो इसे एलिमिनेट करना ही चाहिए, दिस इज लाइक द अप्रोच। एंड अप्रोच कहाँ से मैटर करती है, कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको वहीं पर रहना है बस। देन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्गुमेंट एक्सेप्ट दैट। अच्छा, तो अब या तो वो वीकन करेगा, या तो उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, दो चीज़ हो सकती है, ठीक है। बस स्ट्रेंथन नहीं करना चाहिए, हैव अ डायरेक्ट। अब देखो ये स्ट्रेंथन कर रहा है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथन कर रहा है, अभी अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो इसने बोला डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, अगर वो यहाँ पे छोड़ देता तो ये बहुत वेग क्वेश्चन बन जाता, ये वेग ऑप्शन हो जाता कि इम्पैक्ट कैसा है। तो उसने बोला देखो स्टेबिलिटी है, बट वी कैन स्टिल अज्यूम कि ठीक है, इससे ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रेंथन कर रहा है। अब दिस कैन आल्सो बी द ऑथर्स अजम्पशन, ये अजम्पशन प्राइम एग्जांपल लग रहा है अजम्पशन का, राइट। ऑथर का अजम्पशन लग रहा है, ये लग रहा है, तो वही है। ऑथर का अगर अजम्पशन है, तो उसके कंक्लूजन को तो हमेशा स्ट्रेंथन ही करेगा ना, है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं है। Recent attacks on CPEC site have been primarily carried out by local with limited resources rather than by organized international actors. तो देखो ये स्ट्रेंथन तो कर नहीं रहा, ये तो या तो सॉरी, वेल क्या है भाई, तो वेग सा है अजीब सा, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो ठीक है, इसको रखते हैं, है ना, ये वेग सा लग रहा है, स्ट्रेंथन तो कर नहीं रहा है, ये तो ये आंसर टाइप के लग रहा है, लाइक ये दिस इज लाइक नॉट वीकनिंग एंड दिस इज नॉट इवन स्ट्रेंथनिंग, तो ये बाहर का है, उसको रख सकते हैं हम लोग, है ना। प्रॉब्लम्स पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर रिजल्ट ऑफ डिपेंडेंस rather than a combination of other factors। हम्म, ओके। लाइफ टाइम पाकिस्तान विल स्पेसिफिकली, हाँ तो ये आंसर नहीं है ना, ये टू कि क्या करते हैं, recent attacks on CPEC sites in primarily carried out by local insurgent groups with limited resources rather than by organized international actors। Okay, problems Pakistan's are as a result of the dependence on CPEC rather than a combination of the factors। हम्म, तो देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम आर रिजल्ट किस पे, सीपेक का रिजल्ट है वो, ऑथर ने बोला ना, ये क्या बोला, टू मेनी एग्स इन द सीपेक बास्केट, उससे वल्नरेबल हो गया है, ये इसने बोला है, राइट। अब वेल ये अलग देखो, यहाँ पे क्या है, बात तो क्या बोल रहा है ऑथर, अगर इस स्टेटमेंट का इसको हटाओ, इसको क्या है फालतू का, अगर यहाँ तक तुम पढ़ो, ठीक है, तो व्हाट यू अंडरस्टैंड इज कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम आर रिजल्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑन सीपेक, यही आंसर है। अभी रैदर देन वाला हमें हमारे हमारे इसके लिए रेलेवेंट नहीं है, because what we get the main idea from this statement is कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम are result of this its dependence on the CPEC, which is aligning if not strengthening with the author's argument। तो ठीक है, इसको हम लोग आंसर नहीं रखेंगे, इसलिए आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये बाहर का है, मतलब इंटरनेशनल एक्टर आई डोंट थिंक सो कि कुछ बोला भी है ना। अच्छा ओके ठीक है, अभी तुम वेल ठीक है, आई मीन फाइन है ना ये, कूल। थोड़ा सा वियर्ड सा था, बट देन यू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे एलिमिनेशन करना होता है, कि अगर यहाँ पे ऑथर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गया कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम है वो रिजल्ट है इसके डिपेंडेंस की, ऑथर ने भी यही बोला है, ये हमारा आंसर नहीं है ना, क्योंकि सब्जेक्ट ढूंढना है, तो बस आंसर आना चाहिए, ओके। दिस वाज द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड विद द इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी। हाँ अब देखो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं बिना पढ़े, all we can infer is because they have long harbored anti-science sentiments and it is making vulnerable, तो ऐसे ऐसे कि वो अनसेफ ही होगा। इनकेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखो ही मत, हटा दो, ठीक है, देखो ही मत। हाँ ये देखो बी सही लग रहा है, राइट। मिटिगेटेड हटा दो, ठीक है, पढ़ो ही मत। डिटरल हटा दो, इसमें कुछ था ही नहीं, तो इससे बी होगा इसका आंसर। तो बस वर्ड देख लो, ठीक है, इंक्रीज सीपेक नो, गलत। फिर मिटिगेटेड लॉन्ग स्टैंडिंग थ्रेट्स हटा दो, इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स अराउंड हैव डिटर्ड पोटेंशियल हटा दो, तो इसका आंसर डायरेक्टली बी है, इसमें आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है।
ये कैसे होता है, व्हेन यू गेट द मेन आइडिया और यहाँ पे था, ठीक है, इसमें कोई ये सब था, वल्नरेबल हो गया है, आई मीन ये पूरे पैसे में ये था, तो दिस वाज एक वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अब वी मूव टू 100। तो देखते हैं 100 का, द आर्गुमेंट दैट पाकिस्तान मस्ट मेक एन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी शिफ्ट। अच्छा, इसका assumption ही पूछ रहा है, तो चलो हम लोग ऐसे निकालने की कोशिश करें, ऐसे पहले ट्राई करते हैं। जो अजम्पशन कैन नेवर बी लाइक जो आप सोचोगे वो एकदम जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं लास्ट में बताया था ना, लास्ट वीडियो में, कि ऑथर का भी जो अजम्पशन है ओरिजिनल, और एग्जामिनर का क्या, वो क्या सोच रहे हैं कि ऑथर का क्या अजम्पशन है, एंड आप क्या सोच रहे हो, इट कैन ऑल बी डिफरेंट। सो यू कैन ओनली गेट द राइट वन, और सॉर्ट ऑफ राइट एज पर द एग्जामिनर फ्रॉम द ऑप्शन। ओके, बट ठीक है, हम लोग फिर भी सोचेंगे कि कहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट कोई तो ऐसा ऐसा होगा ना, कोई तो, अगर ये है, मतलब क्या बताऊँ मैं, अगर ऐसा है, लाइक दिस इज लाइक द वेन डायग्राम, ठीक है, कहीं पे तो जाके, यहाँ पे तो जाके मैच कर ही रहा होगा ना, तो हम लोग को बस इतना ढूंढ लेना है, ठीक है, हमारा काम इजी हो जाएगा, तो वो करते हैं, चलो। और अजम्पशन कैसे सोच रहे हैं, इट्स लाइक वेरी सिंपल, तुम सोचो ना कि क्या, लॉजिकली रैशनली एंड लॉजिकली थिंक कि ये क्या सोच के बोला गया है, तुम्हें बस इतना सोचना होता है, और ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। Pakistan must make an economic strategy shift to alleviate its political economic vulnerabilities due to over-reliance on CPEC. ओके, assumption ये है, एंड इंडिफरेंस से भी मैं बना सकता हूँ कि सीपेक से इशू तो हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और अगर वो शिफ्ट कर लेगा तो उसका जो क्या कहते हैं, मतलब हाँ, बेसिक यही है कि मेकिंग एन इकोनॉमी shift away from CPEC would reduce over-reliance and potentially address the vulnerabilities. Like this is basically kind of ऐसे, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ है। तो CPEC will not be as critical for Pakistan's economy as it is now after diversification. वैलिड, क्योंकि देखो क्या है, यहाँ पे लिखा है ओवर रिलायंस, है ना, ओवर रिलायंस बोला है, ठीक है, इट मस्ट मेक अ शिफ्ट, तो जब शिफ्ट बोला है, और अगर शिफ्ट होने के बाद भी सीपेक की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, तो फिर आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि वो क्या कहते हैं, हाउ वुड दैट इवन मैटर, अगर अगर देखो इसको, हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि, I'm so sorry, मैं ऐसे पता नहीं अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, बट व्हाट आई मीन इज कि टू यू नो डबल चेक इफ योर आंसर इज ट्रू। तुम सोचो कि जैसे एक ऑप्शन है, नाउ जस्ट अज्यूम इट टू बी ट्रू, ठीक है, ये ट्रू आपने मान लिया कि इट विल नॉट बी क्रिटिकल, इसको रिवर्स करो कि इट विल बी क्रिटिकल, इसको निगेटिंग कहते हैं ना, अजीब सा। तो इफ इट विल बी क्रिटिकल, ठीक है, तो क्या ऑथर कभी ये बोलता, मतलब ये जो ऑप्शन है इसमें से अगर मैं नॉट हटा दूं, ठीक है, सीपेक विल बी क्रिटिकल एज इट इज नाउ टू डाइवर्सिफिकेशन, तो ये इसको काउंटर कर रहा है ना, क्योंकि देखो इसका रीजन क्या है, अगर ऑथर ने ये बोला, ठीक है, कि उसको शिफ्ट करना है, तो फिर ये ट्रू होता है, और अगर ये ट्रू है, मतलब नॉट वाला अगर पार्ट ट्रू है, जैसे नॉट वाला पार्ट ट्रू है, तभी तो ऑथर ने वो बोला है, और अगर नॉट वाले पार्ट को हम हटा देते हैं और हम लोग इसको रखते हैं, तो ऑथर ये कभी बोलते हैं क्यों, जब ऑथर को तो पता है कि सीपेक उसके बाद भी क्रिटिकल ही रहेगा पाकिस्तान की, तो ऑथर कभी बोलते ही नहीं कि अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करो, राइट, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर बोल भी रहा हूँ तब भी उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज लाइक निगेटिंग दी ऑप्शन, ये तरीका आई डोंट इवन नो क्वेश्चन में क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, ऑल आई नो इसकी मैंने स्टार्टिंग से किया था, देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ऐसे कुछ बकचोदी करवाते हैं कोचिंग में, बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों होता है, वहां पे से बोलते हैं कि ऐसे देखो उल्टा हो रहा है कि आप पता नहीं क्या करते हैं। नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वो ऐसा है कि अगर लेट्स से देखो ना, अगर अगर वो तब भी क्रिटिकल होता, तो क्या कभी ऑथर बोलता कि यू शुड मेक एन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी शिफ्ट, क्योंकि अगर जब ऑथर को पता है कि वो क्रिटिकल रहेगा, तो उसको वो बोलेगा ही नहीं, बिकॉज ही नोज कि अगर मैं बोल दूंगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज लाइक अ वेरी गुड कंटेंडर, इसको रखते हैं, विल इम्प्रूव विदाउट, अच्छा, ओके, फाइन, इसको देखते हैं रखते हैं, ठीक है, हमें देखो यहाँ पे फाइन वाला क्या है ना, इसको रखो,
फिर हम लोग को एलिमिनेट करना है बाकी अदर कंट्रीज दैट आर हेवीली डिपेंडेंट हैज सक्सेसफुली। ये ऑथर का ये अच्छा देखो other countries that are heavily dependent on single economy growth have successfully shifted तो just because other countries have shifted तो पाकिस्तान भी शिफ्ट हो जाए ये सोच के तो नहीं ऑथर ने assumption तो नहीं दिया है ठीक है बिकॉज हम लोग को देखो इसका हमारे पास एविडेंस भी नहीं है ठीक है और यही सोच के वेल अदर कंट्रीज का सोच के ऑथर ने बोला है कि नहीं बोला है हमें नहीं पता हमारे पास जो लिमिटेड जो वो है क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं अदर कंट्रीज अब ये सब जो होता है ना ये वीकेंड स्ट्रेंथ में काम आता है आपका अदर कंट्रीज ये अजम्पशन में आई डोंट रियली थिंक सो इसको हटा दो क्योंकि अजम्पशन विल फ्लो फ्रॉम द पैसेज ओके एटलीस्ट यू लाइक मेक अ सेंस ऑफ इट अगर इसमें मेंशन है इसके आसपास आइडिया में मेंशनड है तो वी कुड हैव अज्यूम कि अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो फिर हम लोग शायद इसको मार्क कर सकते थे शायद से लाइक डिपेंड्स ऑन द अदर थ्री ऑप्शंस बट या अभी तो हट रहा है will not react negatively away from CPEC. Well, do we care? Do we care? Does the author care? All author cares about is कि वो पाकिस्तान वल्नरेबल है ठीक है एंड वॉट ऑथर केयर्स अबाउट कि ओवर रिलायंस है सीपेक पे है ना देखो टू मेनी एग्स दिस इज व्हाट ऑथर केयर्स अबाउट तो ये चाइनीज गवर्नमेंट क्या बोलेगी हटाओ दो लाइक वाइज ठीक है रिड्यूसिंग रिलायंस विल इम्प्रूव इकोनॉमिक देखो ये ट्रू है अभी ये है कि नहीं ट्रू फॉर assumption we cannot really say right and when we compare both of these तो लॉजिकल क्या है इस स्टेटमेंट से लॉजिकली क्या तुम ब्रिज कर पा रहे हो देखो assumption लाइक लिटरली ब्रिज ये ब्रिज जैसा लग रहा है अगर मैं इसको हटा देता हूँ चलो मैं अगर कहता हूँ नेगेटिवली इफेक्ट हो भी रहा है तो भाई इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट तो बढ़िया रहे एंड डू वी केयर अबाउट दिस शिट डू वी केयर अबाउट दिस शिट नो बस पैसेज में कुछ मेंशन ही नहीं है ऐसा ठीक है इसलिए गया पर अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ कि इट विल बी क्रिटिकल तो ऑथर ने जितना भी बोला है वो सब जीरो हो जाएगा इसलिए आंसर शुड बी ए ठीक है दिस इज assumption लाइक अ बिट टफ ऑनेस्टली बट दिस इज हाउ यू डू इट ठीक है आपको लॉजिक मैं अगर बोल रहा हूँ लॉजिक कहीं पे लगता है तो लॉजिक से ज्यादा assumption में लगता है आई एग्री आई एग्री एंड दिस शिट कैन बी टफ बट देन अगेन यू विल हैव टू पूरा स्टेटमेंट के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं देखो इसका यहाँ तक पार्ट है एक ठीक है इसका एक ये पार्ट है जो कि लाइक वेरी शिट वी डोंट केयर वी डोंट केयर वी डोंट केयर वी ओके सो या आई मीन वेल भाई ओके या सो वी केयर दिस इज द थिंग ओके इसलिए आंसर ये है given the sequence of attacks described what can be inferred of the potential motivations अबे देखो भाई यहाँ पे सिंपल है ओके यहाँ पे क्या है एंटी चाइना सेंटिमेंट्स उनके अंदर हमें इतना पता है ठीक है चलो अब देखते हैं और हाँ यहाँ पे क्या है कि सी सी पे डेट्रीमेंटल टू द ब्रॉडर एस्पिरेशंस अपने मकसद के खिलाफ समझते हैं बट यार समथिंग लाइक दैट ओके ठीक है वी गेट द आइडिया ऐसे कुछ तो फाइन गुड सी टू चैलेंज सोवरेनिटी ओके आई डोंट रियली थिंक सो सो हटाओ इसको ठीक intend to disrupt to undermine local businesses and industries hmm, well इम्पैक्ट जरूर ये हो रहा है बट क्या उनका इंटेंशन है आई डोंट रियली थिंक सो ठीक है देखो यहाँ पे देखो ये तुम अगर तुम ये सोच रहे हो ब्रॉडर एस्पिरेशंस तो ठीक है इसको रख लेते हैं फाइन ठीक है रख लेते हैं जस्ट जस्ट फॉर योर सेक प्राइमरी टाइगर ये फॉरेन हाँ देखो देखो एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही चीज़ है ना एंटी चाइना सेंटिमेंट्स भाई मेरा थोड़ा पेन इधर उधर हो जाता है so just ignore that but yeah anti-china sentiments foreign influence valid very valid express discontent अरे भाई क्या है भाई ये क्या है भाई ये गए दो
अब दो इन दोनों में से चूज करो, क्या बेटर है? पैसे के हिसाब से ये बेटर लग रहा है, 700 लग रहा है, मार्क कर दो भाई, कर दो मार्क। और ये देखो, ये नहीं है वैसे, नहीं समझ में आ रहा ना, पैसे से भी समझ में नहीं आ रहा है ये, दिस लाइक नॉट सपोर्टेड। अभी ब्रॉडर एस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पता ही नहीं, तो हम लोग को इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है इसके बारे में। हम लोग को जो दिया है, हम लोग को दिया एंटी चाइना सेंटिमेंट्स, हम लोग को वहीं तक रहना है, ठीक है, और वहीं तक रह के हम लोग को सी मार्क करना है। नाउ वी कम टू 1200, 100 सॉरी 102। व्हाट अंडरलाइन इशू डज द ऑथर सजेस्ट इज एक्सकर्बरेटेड बाय। हाँ, देखो यहाँ पे क्या है, यही भी लिखा है कि उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से वो वल्नरेबल हो रहा है ना, और क्या हो रहा है कि वो सेफ भी नहीं हो रहा है ना, बोल रहे कि वो अनसेफ भी ज्यादा बन रहा है। दिस इज लाइक द थिंग, और इकोनॉमिक क्राइसिस तो मतलब है ही, राइट? सेफ, सेफ नहीं है, हम लोग इसको जरूर इन्फर कर सकते हैं, आपको सेफ नहीं है पाकिस्तान, ठीक है। इसमें ये बोले ना, हैवी रिलायंस ऑन सी पेक, ठीक है, राइट, सेफ्टी इशू इज एक्सकर्बरेटेड। तो देखते हैं, इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, भाई क्या हमारे यहाँ पे देखो, ओके, Pakistan's की security issue ranging from Afghanistan on a Western model to the demand more than just military response. इसने बस इतना ही बोला है about neighboring countries. Is demand more than that. But क्या ये CPEC की वजह से हो रहा है? नहीं, नहीं, ओके। एंड इन रियल लाइफ दिस इज लाइक नॉट वेरी ट्रू, सो इसको हटा दो। डोमेस्टिक, हाँ डोमेस्टिक, ये जरूर है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यस। डिटोरिएशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ग्लोबल पार्टनर्स आउटसाइड चाइना, नो, राइट। यहाँ पे क्या बोला, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इट वुड इंडिकेट, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि अगर आप इंडिया से ट्रेड खोलोगे, देखो यहाँ पे ये है ना, ये दिख रहा है ये, इंडिया विद इंडिया, तो इसको, ये इट वुड डिस्प्ले द ग्लोबल कम्युनिटी, यहाँ पे वो इसके कॉन्टेक्स्ट में है, राइट। इतना तो समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल वाला डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भी बकचोदी है वो यहाँ पे इसलिए बोलिए, इसको हटा दो। स्केलेटिंग रीजनल कंपटीशन अमंग, भाई, 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 ठीक है, कुछ कुछ तो हंसी आती है। और ये देखो, सही है, डोमेस्टिक अनरेस्ट तो भर रहा है, अनरेस्ट। अभी अनरेस्ट हम लोग यूजुअली देखते हैं प्रोटेस्ट के फॉर्म में, बट ये प्रोटेस्ट तो है ना यार, क्योंकि देखो बीएलए बलोच डिट्रीमेंटल सोचते हैं, उनके अंदर लॉन्ग ये हैं, तो हाँ भाई, मतलब वहीं के लोग हैं, उनके अंदर ही बढ़ रहा है, ठीक है, लोकल इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है। और फिर क्या है, एंड इकोनॉमिक रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, हाँ देखो, ग्रोइंग अनरेस्ट related to political and economic instability. Is escalating political and economic instability. Political and economic stability. यहाँ पे देखो क्या है, ऑन मल्टीपल फ्रंट्स है ना, जिसमें से एक इकोनॉमिक क्राइसिस जरूर लिखा हुआ है, कपल्ड विथ प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे यू सी दिस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, राइट। अनरेस्ट, तो यू कैन इन्फर अनरेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट शिट जो भी हो रहा है, अटैक। पॉलिटिकल वाला है कि नहीं है, वेल वी कैन नॉट रियली इन्फर दैट, मतलब वी, हाँ वी कैन नॉट रियली, ओके, पर ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। और बाकी तीन कूड़ा है, जब बाकी तीन कूड़ा है और यहाँ पे आई डोंट रियली थिंक सो कि कुछ अ, इसमें कुछ टफ सा था, इजी था एलिमिनेट करना, तो इसको तो तुम डायरेक्टली मार्क कर दो, तुम डायरेक्टली मत घुसो, ठीक है, सिर्फ एलिमिनेशन से ही काम चलाओ। दिस होल, वेल दिस होल एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन। तो आई होप मेरे मार्क्स से सही होंगे, मैंने चेक नहीं किया है, बट देन अगेन लाइक मैं फ्रेशली सॉल्व करूँगा, मैं फ्रेशली इन द सेंस कि मैं आता हूँ, खोलता हूँ, देन आई स्टार्ट सॉल्विंग, ओके। शुड आई चेक दीज, ठीक है, मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ कि आंसर सही है कि नहीं है। यप, सो सारे आंसर सही है। हाँ, एंड दिस वाज इट फ्रॉम दिस पैसेज, देन विल मूव टू, मतलब अभी नहीं, बट इन द नेक्स्ट वीडियो वही दो जो बचे हैं उनको कवर कर लेंगे। And honestly, this was like very shit type का,
उसको देखते हैं इसको कैसे है क्या है, ठीक है। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड देन डू कमेंट गाइस अगर तुमको लग रहा है कि कुछ तो, क्योंकि देखो यार, आई एम नॉट अ फ्यूचर, ओके, एंड मेरे को, मैं मानता हूँ कि it's like a bit tough for me to explain all this shit, but then again I'm trying to, so I hope it's helpful maybe. But yeah, so yeah, thanks for watching. Bye bye.